Hello students, welcome to Learn with Hema's class. Today is my fourth session on adjectives. Till now we have learned adjectives and its kinds, formation of adjectives and its 3 degrees, interchange of degrees. In today's session we shall learn more on quantifiers which are used as adjectives, and we shall also understand more about adjectival phrases and lastly adjectival or relative clauses. Before we proceed, please like and subscribe my channel. So here we go. This is adjective part 4, quantifiers. Now what is a quantifier? Quantifier is nothing but these are adjectives used which tells you more about quantity. Now let's learn about the definition. A quantifier is a word or a phrase which is used before a noun. See, a quantifier is a word or a phrase which is used before a noun to indicate the amount or quantity. So as I said, it indicates a amount or quantity. That is why it is called as quantifier, and that is the reason these kind of adjectives which we shall be learning now, they are said to be quantifiers. For example, any, many, much, some, none, few, a few, little, a little, etc. There are many. We shall learn one by one all of them. Now the first quantifier which I am going to let you know about is some, any, much and many. These quantifiers actually tells you something. With a very little difference you have to identify which is the correct quantifier which you should use in a sentence. Many a times we make mistakes using these quantifiers in a sentence. If it is asked in the fill in the blanks, or when we interchange the sentences, do as directed, from positive to negative or from negative to affirmative to negative or from negative to affirmative, when we change these sentences, at that time we make such kind of mistakes by using improper adjective. So these quantifiers will let you know exactly what word you should use in your sentences. So let's understand some of them. Some, the first word is some. Now some refers to a reasonable amount of something. If I talk about some knowledge means you are gaining something. Something is there. It is usually used with uncountable nouns. Some is usually used with uncountable nouns. Now you must be knowing what are countable nouns and what are uncountable nouns, but may also be used with countable nouns. Some can also be used with countable nouns. Some is used as a positive statement. So some is used mostly with uncountable nouns, but it can also be used in countable noun. And some, if a sentence contains some, means it's a positive sentence. Just remember my point, it's a positive sentence. When in do as directed, whenever it comes that make the sentence negative or make the sentence positive, then these are the words which makes you change the sentence, which helps you to change the sentence. Now example I am giving you. Could you add some sugar to the coffee please? So it's a request over here, but some sugar means more sugar is to be added to the coffee. Something is to be added. So it's a positive statement. So there is sugar. So it is used with a countable noun. On some days sugar was uncountable. Sugar is uncountable noun. Could you add some sugar to the coffee please? This is uncountable, it's written here countable. On some days I like waking up later than usual. This is the second example. On some days I like waking up later than usual. So used with countable noun. Now some here over used with countable nouns. Noun, days is a countable noun. Okay. So both the ways we have used some with uncountable nouns such as sugar, and we have also used some with countable noun, that is days. Now next is any. Any is used to express quantity or degree in a negative or interrogative sentence. When you use any, that means you are either making a sentence negative in meaning. Make it sure negative in meaning, but no negative word is used. If you use the word any, that is without using any negative word, that is no, not, never, you are making the meaning of the sentence in negative.
सो दे विल नॉट गेट एनी मनी टुडे, दे विल नॉट गेट एनी मनी टुडे, मतलब आज उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो एनी हियर नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कुछ नहीं। आर देयर एनी बर्ड्स ऑन द ट्री, आर देयर एनी बर्ड्स ऑन द ट्री, क्या वहाँ पर एक भी पंछी है? तो मतलब ये भी कुछ नहीं के बराबर ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव एनी बुक्स टू रीड ओवर द वीकेंड, आई डू नॉट हैव एनी बुक्स, मतलब मेरे पास कोई भी बुक नहीं बचे हैं टू रीड। नाउ मच एंड मैनी आर यूज टू शो अ लार्ज क्वांटिटी, ये तो हमने सम और एनी का कर दिया, अब मच और मैनी का कर रहे हैं। मच एंड मैनी आर यूज टू शो अ लार्ज क्वांटिटी और नंबर ऑफ समथिंग, राइट। मच और मैनी, सम और एनी तो थोड़े के लिए हमने किया, सम एटलीस्ट की कुछ तो है, एनी यानी कुछ भी नहीं। और यहाँ पर मच और मैनी अगर हम यूज़ करते हैं तो ये लार्ज क्वांटिटीज़ के लिए होते हैं नॉर्मली। और अ नंबर ऑफ समथिंग, मच इज़ यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मैनी इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। मच जो नॉर्मली हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है और मैनी जो है हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू कंप्लीट द टेस्ट पेपर, हाउ मच टाइम, टाइम इज़ अनकाउंटेबल, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू कंप्लीट द टेस्ट पेपर्स, ठीक है। तो मच जो है हमने अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया है। हाउ मैनी मिनट्स आर लेफ्ट फॉर द बेल टू रिंग, हाउ मैनी मिनट्स, मैनी मिनट्स आर काउंटेबल, सो मैनी, जो काउंटेबल है उनके लिए हम मैनी यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए मच यूज़ करेंगे। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर विथ यू। नाउ सेकेंड इज लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। नाउ दीज थ्री, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, all the three are different. Little, it means almost nil, मतलब कुछ भी नहीं in number. Little, it means almost nil. It has a negative meaning. Again, little जो है, little word जो हम यूज़ करते हैं वो negative meaning रखता है। There is little hope for success. देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, There is little hope for success, यानी यहाँ पे हमने कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ किया है, नो, नॉट वगैरह, लेकिन फिर भी लिटिल वर्ड जो आ गया है इसका मतलब ही है कि इसमें ये नेगेटिव मीनिंग वाला सेंटेंस है, लेकिन पॉजिटिव फॉर्मेट में लिखा गया है। द सोसाइटी हैज़ लिटिल कंसर्न फॉर द पुअर, सोसाइटी को बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है पुअर के लिए, इसका मतलब यही होता है। तो द सोसाइटी हैज़ लिटिल कंसर्न फॉर द पुअर, यानी जब हमको नेगेटिव मीनिंग रखना है किसी सेंटेंस में विदाउट यूजिंग अ नेगेटिव वर्ड, वी कैन यूज़ द वर्ड लिटिल। द पर्सन हैज़ लीस्ट नॉलेज विद द मशीन्स, मतलब उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है मशीन्स की। दैट वॉज द अनदर एग्जाम्पल विच आई गेव यू। नाउ बी, अ लिटिल, अ लिटिल मीन्स समथिंग, थोड़ा थोड़ा कुछ। इट मीन्स सम दो नॉट मच, कुछ, ज़्यादा नहीं, कुछ। इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। सिर्फ अगर लिटिल लिखते हैं तो वो नेगेटिव मीनिंग है, अ लिटिल लिखेंगे तो ऑफकोर्स इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, यानी कुछ है। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द वेल, अ लिटिल मतलब जो भी है वो सारा हमने बता दिया है, लेकिन जो भी है वो थोड़ा सा ही है, सारा कुछ। शी गेव द बेगर अ लिटिल फूड, तो उसने बेगर को एक थोड़ा सा फूड दिया। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द लिटिल। द लिटिल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी, नॉट मच बट ऑल दैट देयर इज़। द लिटिल का मतलब भी थोड़ा ही होता है, द लिटिल मतलब थोड़ा क्वांटिटी, लेकिन वो जो भी थोड़ा है वही सब कुछ है, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सो आई हैव ड्रंक द लिटिल मिल्क दैट रिमेंड, मतलब द लिटिल मिल्क, थोड़ा सा ही मिल्क था और जितना भी मिल्क था उतना मैंने पी लिया है। आई हैव ड्रंक द लिटिल मिल्क दैट रिमेंड। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ द लिटिल। द लिटिल फूड शी हैड वॉज स्टेल, द लिटिल फूड शी हैड वॉज स्टेल, वो थोड़ा सा जो खाना उसके पास था वो स्टेल था, मतलब बास मार रहा था। नाउ ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी के लिए अगर हम आगे जाते हैं, ईच एंड एवरी आर मोर और लेस सिमिलर इन मीनिंग। ईच एंड एवरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट वी से दैट एवरी इज़ मच स्ट्रोंगर देन ईच। एवरी वर्ड जो है हम ज़्यादा स्ट्रांगली यूज़ कर सकते हैं। एवरी मीन्स ईच विदाउट एक्सेप्शन, एवरी का मतलब ईच ही होता है, लेकिन ईच में यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। Now let us learn about each. Each is used when speaking of two or more persons or things. हम दो से ज़्यादा लोगों के बारे में जब बात करते हैं, चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो each यूज़ करते हैं। It signifies the individuals in a group. Each
हर एक इंसान के बारे में बताता है। एक ग्रुप में जितने भी इंसान हैं, हर एक इंसान के बारे में हम बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप व्हेन देयर नंबर इज़ डिफाइनाइट एंड इज़ लिमिटेड। तो ईच हम कब यूज़ करते हैं? जब एक छोटा ग्रुप है हमारे पास में, उनका नंबर हमको पता है कि कितने लोग हैं, ईच ऑफ देम, है ना, तो दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड ईच। नाउ ईच मेंबर ऑफ द टीम वॉज गिवन अ मेडल टू टेक होम। अभी टीम में कितने मेंबर हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 11, 15, 20, 25 मैक्सिमम हम पकड़ लें। नॉर्मली तो 6-7 से शुरू होते हैं, 6-7 से शुरू होकर किसी भी गेम में 15 प्लेयर्स तक जाते हैं। तो ईच जो है, हम उन जब छोटे मेंबर्स होते हैं, कम मेंबर्स होते हैं ग्रुप में, और हमको पता है डिफाइनाइट नंबर, हमको पता है कितने मेंबर्स हैं, तब हम ईच यूज़ करते हैं। ईच मेंबर ऑफ द टीम वॉज गिवन अ मेडल टू टेक होम। लास्ट वीक ईच डे वॉज अ फाइन डे। अभी वीक में हमको पता है ओनली 7 डेज होते हैं, तो वी हैव यूज द वर्ड ईच। तो जहाँ छोटे नंबर्स होते हैं क्वांटिटी में यूज़ करने के लिए, वहाँ हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ईच यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट एवरी। एवरी जो है, इट इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2 persons और थिंग्स। इट सिग्निफाइज अ टोटल ग्रुप, स्पेशली व्हेन द ग्रुप इज़ इनडिफाइनाइट एंड अनलिमिटेड। तो डेफिनेशन से पता चल रहा है एवरी जो है, हम जब 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो एवरी यूज़ करते हैं, स्पेशली जब हमारा नंबर जो है, ग्रुप का नंबर जो है वो इनडिफाइनाइट है और या फिर अनलिमिटेड है, हमारे पास टोटल काउंटिंग नहीं होता है। ऐसे चीज़ों के लिए हम एवरी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है, एवरी चेयर इन द हॉल वॉज ऑक्यूपाइड। अभी एक हॉल काफ़ी बड़ा है, उसमें बहुत सारे चेयर्स है, हमने काउंटिंग नहीं की है। 2 चेयर्स आर अ काउंटेबल नाउन। लेकिन ऐसे हॉल्स में जहाँ पर अनगिनत चेयर्स होते हैं, देयर इट इज़ नॉट ईजी फॉर काउंटिंग। छोटा लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है, एंड वी कैन ऐड ऑन टू दीज नंबर्स। ये कभी भी ऐड ऑन हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स के लिए हमने एवरी यूज़ किया है। एवरी चेयर इन द हॉल वॉज ऑक्यूपाइड। यहाँ पर हम ईच चेयर इन द हॉल वॉज ऑक्यूपाइड नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर वर्ड एवरी होगा, क्योंकि याद रखो जहाँ पर बड़े नंबर्स आते हैं वहाँ पर हम एवरी वर्ड यूज़ करते हैं। एवरी डे इज़ अ हैप्पी डे फॉर एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। यहाँ पे एवरी डे ये अनलिमिटेड है, इनडिफाइनाइट नंबर है। फॉर एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इट इज़ अ हैप्पी डे। नाउ लेट्स लर्न द नेक्स्ट, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब ये तीनों जो है, इनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं थोड़ा बहुत। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। जैसे आपने लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल किया है, उसी तरीके से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है। फ्यू मीन्स नॉट मैनी, फ्यू मीन्स नॉट मैनी, या कभी कभी हम बोल सकते हैं हार्डली एनी, मुश्किल से कुछ। इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। जैसे एनी का नेगेटिव मीनिंग होता है, लिटिल का नेगेटिव मीनिंग होता है, वैसे ही फ्यू का भी नेगेटिव मीनिंग होता है। फ्यू पीपल कैन स्पीक करेक्टली इंग्लिश। कुछ ही लोग जो है बोल सकते हैं करेक्टली इंग्लिश, कुछ ही लोग यानी कि नहीं के बराबर। फ्यू मैन देयर आर दैट रियली केयर। कुछ ही लोग होते हैं जो वाकई में कुछ केयर करते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं वाकई में जो केयर करते हैं, तो कुछ नहीं के बराबर। देन अ फ्यू मीन्स सम। अ फ्यू मतलब कुछ, और सम हमारा पॉजिटिव में आता है, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। अ फ्यू पीपल कैन स्पीक करेक्ट इंग्लिश। अ फ्यू यूज़ किया है मतलब कि कुछ लोग स्पीक कर सकते हैं, और अगर सिर्फ फ्यू वर्ड हमने यूज़ किया है, दैट मीन्स हम नहीं के बराबर समझ के चले। अ फ्यू मैन दैट आर रियली देयर आर दैट रियली केयर। कुछ लोग जो है सचमुच में केयर करते हैं। तो फ्यू बोला है तो नहीं के बराबर लोग केयर करते हैं। अ फ्यू वर्ड हमने यूज़ किया है मतलब कुछ, सम। नेक्स्ट है द फ्यू। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल दैट देयर आर। द फ्यू का मतलब है कि ज़्यादा नहीं, बट जितने भी लोग हैं वो सब। द लिटिल में भी ऐसा ही है, ज़्यादा नहीं बट जितना भी है वो सब। वैसे ही द फ्यू का भी है। द फ्यू ट्रीज दैट वर प्लांटेड आर ऑल ग्रोइंग। अब सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि लिटिल, द लिटिल में वो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, और द फ्यू जो है हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। द फ्यू ट्रीज दैट वर प्लांटेड आर ऑल ग्रोइंग। थोड़े से जो ट्रीज़ हमने प्लांट किए वो सारे के सारे ग्रो हो रहे हैं। थोड़े से जो प्लांट किए हैं वो सारे के सारे ग्रो हो रहे हैं। तो द फ्यू मतलब भले ही थोड़े हैं नंबर, बट सारे इंक्लूड हो जाते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है फादर, फर्दर। ये हमने जब डिग्रीज किए थे तो फार का फादर भी होता है, फार का फर्दर भी होता है, राइट। तो ये फादर का मतलब क्या है एंड फर्दर का मतलब क्या है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। लेट्स लर्न। फादर
इट इज़ यूज व्हेन मोर डिस्टेंस इज अप्लाइड। फार्दर हम तब यूज़ करते हैं जब डिस्टेंस आता है कि कितनी दूरी है। द सी बिकम्स डीपर द फार्दर यू गो अवे फ्रॉम द शोर। जितना दूर आप शोर से जाओगे उतना सी डीप होता जाएगा, फार्दर जितना दूर आप जाओगे। दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देन माउंट आबू इज़। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दिल्ली दूर है माउंट आबू से। सो फार्दर मीन्स डिस्टेंस के बारे में बताते हैं। नाउ फर्दर, फर्दर इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग एडिशनल इज़ इम्प्लाइड, यानी आगे। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, अब आगे क्या, जब यहाँ पर हमको कुछ एडिशनल ऐड करना रहता है तब हम फर्दर वर्ड यूज़ करते हैं। काइंडली डू द नीडफुल विदाउट फर्दर डिले, मतलब आगे और कुछ भी देरी किए बिना जो भी मेजर्स लेने हैं वो लीजिए। काइंडली डू द नीडफुल विदाउट फर्दर डिले, तो फर्दर डिले यानी यहाँ डिस्टेंस मेजर नहीं हो रहा है, ये फर्दर यानी कि अब आगे जो हम एक्शन लेने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा वर्क होगा वो। इट वॉज नॉट वाइज ऑन योर पार्ट टू मेक फर्दर रिमार्क्स, मतलब तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही नहीं था कि तुमने और आगे रिमार्क्स दिए, मतलब बैड तो बोल ही रहे हो, उसके आगे और तुमने रिमार्क्स भी दे दिए, बैड रिमार्क्स दे दिए, तो इट इज़ नॉट गुड। मतलब टीचर केप्ट ऑन स्पीकिंग फर्दर ऑल्सो, तो मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दिया और बाद में भी टीचर बोलते जा रही है, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी। नेक्स्ट, नियरेस्ट, नेक्स्ट, तो 6th वन हमारा है नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट जो है इट सिग्निफाइज अ डिस्टेंस क्लोज एट हैंड और क्लोजनेस, मतलब जो हमारे पास में है या क्लोज है हम उसको बोलते हैं नियरेस्ट ना। विच इज़ द नियरेस्ट बस स्टॉप, मतलब जो जितना कम से कम दूरी पर जो है नियरेस्ट, हम ऐसा डिस्टेंस के बारे में बोल सकते हैं। नियरेस्ट वी कैन यूज़ फॉर डिस्टेंस। सो माई मदर इज़ माई नियरेस्ट रिलेटिव। बोरीवली इज़ द टाउन नियरेस्ट टू माई टाउन। ना नेक्स्ट जो है इट सिग्निफाइज पोजिशन, ये पोजिशन बताता है। हु इज़ नेक्स्ट इन द लाइन, मतलब अब लाइन में अगला कौन है। माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू द गवर्नर्स बंगलो, जस्ट उसके बाजू में। नंबर, यू कैन से नेक्स्ट मीन्स इट सेज नंबर। और व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन अराइव, मतलब अब अगली ट्रेन कब आने वाली है। नियरेस्ट जो पास में ही है और नेक्स्ट यानी जो अगला, अगला कौन है, ऐसा। Now again the word later and latest refers to time and the words later and last refers to position। ये जो हमने डिग्रीज में लेट, लेटर, लेटेस्ट या फिर लेट, लेटर, लेट, लास्ट, ये वर्ड्स जो हमने किए थे ये वो चीज़ है। द वर्ड्स लेटर एंड लेटेस्ट, ये दो वर्ड हम पढ़ेंगे और लेटर एंड लास्ट ये दो वर्ड हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लेटर एंड लेटेस्ट के एग्जाम्पल करते हैं। लेटर मतलब आगे की तारीख में सरका देना। The test has been postponed to a later date, LATER, later date. The test has been postponed to a later date. जिस तरह से एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होती है, हमारे अभी लॉकडाउन में एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गई थी या कैंसिल हो गई है, तो ये पोस्टपोन्ड टू अ लेटर डेट। एंड लेटेस्ट, द लेटेस्ट न्यूज़ थ्रिल्ड अस ऑल। द लेटेस्ट न्यूज़ हम सभी को एक्साइट कर दी है। या फिर द लेटेस्ट फैशन, हम द लेटेस्ट न्यूज़, द लेटेस्ट फैशन, the latest syllabus, all these things we use। the latest मतलब जो अभी अभी just हमने अपडेट किया है। next, the later half of the session was boring। अब ये जो later है, letter, ये जो positions को relate करता है, letter और last। position मतलब कौन सा part। अभी the later half of the session was boring, later half of the session मतलब next half of the session was boring, not the first half, the last half you can say। और आई वॉन्ट यू टू ओपन द लास्ट पेज ऑफ द बुक, अभी पोजिशन बता रहा है एग्जैक्टली, आई वॉन्ट यू टू ओपन द लास्ट पेज ऑफ द बुक। अब नेक्स्ट जो है हम एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट के बारे में करने वाले हैं। तो इसके हम पहले रीड कर ले, समझ लिए क्या है। द वर्ड्स एल्डर एंड एल्डेस्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि हम जब यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में तो हमारे पास कई बार मिस्टेक्स हो जाती है कि हम क्या यूज़ करें, एल्डर यूज़ करें, एल्डेस्ट यूज़ करें, एल्डर की जगह ओल्डर यूज़ करें या एल्डेस्ट की जगह ओल्डेस्ट यूज़ करें। ये बहुत कि हम कहाँ यूज़ करते हैं एल्डर, एल्डेस्ट। द वर्ड्स एल्डर, एल्डेस्ट आर जनरली यूज्ड विथ रेफरेंस टू वंस फैमिली। हाँ, विथ रेफरेंस टू वंस फैमिली, जब कोई फैमिली में हम किसी की बात करते हैं कि ये बड़ा है या ये सबसे बड़ा है, तो वहाँ पर हम एल्डर या एल्डेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। और द वर्ड्स ओल्डर एंड ओल्डेस्ट रिफर्स टू
पर्सन्स एंड थिंग्स, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट जो है ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज़ होता है, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, थिंग्स के लिए नहीं यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रीमा इज़ माई एल्डर सिस्टर, अब रीमा इज़ माई ओल्डर सिस्टर यूज़ करोगे तो वो रॉन्ग होएगा, उसका यूजेज विल बी रॉन्ग यूजेज। एक्चुअली रीमा इज़ माई एल्डर सिस्टर इज़ द करेक्ट यूजेज। हरी इज़ द एल्डेस्ट सन इन आवर फैमिली, अगर हम हरी इज़ द ओल्डेस्ट सन इन आवर फैमिली यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग होगा, हरी इज़ द एल्डेस्ट सन इन आवर फैमिली। दिस मॉन्यूमेंट इज़ ओल्डर देन दैट वन, अभी दिस मॉन्यूमेंट को हम एल्डर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओल्डर ही यूज़ करना पड़ेगा, ओल्डर मतलब पुराना। दिस मॉन्यूमेंट इज़ ओल्डर देन दैट वन एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट हाउस इन द सिटी, ये सबसे पुराना घर है सिटी में। तो इस तरीके से हमने एल्डर एल्डेस्ट या ओल्डर ओल्डेस्ट का यूजेज किया है। ये अब हमारे जो है क्वांटिफायर्स ख़त्म हो जाते हैं एल्डर एल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट के साथ में ही। हमने टोटल 8 क्वांटिफायर्स यहाँ पे किए हैं। क्वांटिफायर्स के ख़त्म होने के साथ ही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एडजेक्टिव्स का, जो कि है एडजेक्टिवल फ्रेजेस, वो स्टार्ट हो जाता है। एडजेक्टिवल फ्रेज, अभी मैंने फ्रेज़ के सेशंस तो किए नहीं हैं, वो भी मैं करूँगी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको जानकारी बता दूँगी। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस जो है सिंगल वर्ड नॉर्मली नहीं होते हैं, मोर देन 2 और 3 वर्ड्स एक सेंटेंस में जब होते हैं, विच कन्वेज सम मीनिंग बट इट्स मीनिंग इज इनकम्प्लीट इन अ सेंटेंस, उससे सेंटेंस का मतलब पूरा नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं फ्रेजेस। विराट कोहली टुक हिज स्टैंड्स अगेंस्ट द हाईली सक्सेसफुल बॉलर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजेक्टिवल फ्रेजेस मतलब ऐसे फ्रेजेस जो एडजेक्टिव का काम करें, ठीक है। तो ये जो है विराट कोहली टुक हिज स्टैंड्स अगेंस्ट द हाईली सक्सेसफुल बॉलर, यहाँ पे हमारा नाउन है बॉलर और ये फ्रेज है द हाईली सक्सेसफुल, मैंने इसको अंडरलाइन किया है, द हाईली सक्सेसफुल बॉलर। द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इज़ एन इंडियन मोटर रेसिंग सर्किट इन ग्रेटर नोएडा। तो ये जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ये एक इंडियन मोटर रेसिंग सर्किट है ग्रेटर नोएडा में। तो एन इंडियन मोटर रेसिंग ये जो है फ्रेज है ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन सर्किट को। नाउ दीज फ्रेजेस, ये जो ऊपर हमने 2 फ्रेजेस किए हैं, द हाईली सक्सेसफुल एंड एन इंडियन मोटर रेसिंग आर एडजेक्टिवल फ्रेजेस, दे डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स। ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, एक में बॉलर को डिस्क्राइब कर रहा है और एक में सर्किट को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, सरबजीत इज़ अ मैन फॉर ऑल सीजन्स। सरबजीत इज़ अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, ये फ्रेज जो है डिस्क्राइब कर रहा है सरबजीत को, नाउन सरबजीत को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन है सरबजीत? ही इज़ अ मैन फॉर ऑल सीजन्स। तो ये अ मैन फॉर ऑल सीजन्स ये आपका फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज। So an adjectival phrase is a group of words that does the work of an adjective. It answers the question what kind or which ones. What kind or which ones. यहाँ पे जो दोनों भी हैं, ऊपर हमने adjectival phrase किए, ये आंसर what kind करते हैं। What kind, अगर हम क्वेश्चन करेंगे इन सेंटेंसेस को what kind of circuit या what kind of bowler, तो हमको इसका आंसर मिलता है the highly successful bowler या फिर an Indian motor racing circuit। अब यहाँ पे सेंटेंसेस कुछ एक्सरसाइज के भी मैंने लिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसमें यू हैव टू अंडरलाइन द एडजेक्टिवल फ्रेज। आपको एडजेक्टिवल फ्रेज अंडरलाइन करना है। ही प्रिसाइडेड ओवर सेवरल हाई प्रोफाइल मैटर्स रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज एंड टैक्सेशन। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है एडजेक्टिवल फ्रेज सेवरल हाई प्रोफाइल। वो विच मैटर्स, सेवरल हाई प्रोफाइल, यहाँ पर हम विच क्वेश्चन कर सकते हैं, विच मैटर्स, सेवरल हाई प्रोफाइल मैटर्स। तो मैटर्स हमारा नाउन है और किस टाइप के मैटर्स, व्हाट काइंड बोल सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 12 May 2010 जस्टिस कपाडिया वॉज स्वॉर्न इन टू द हाइएस्ट रैंकिंग जुडिशियल पोजिशन इन इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, ऑन 12 May जस्टिस कपाडिया वॉज स्वॉर्न इन टू द हाइएस्ट रैंकिंग जुडिशियल पोजीशन। तो द हाईएस्ट रैंकिंग जुडिशियल ये आपका जो है एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। द हाईएस्ट रैंकिंग जुडिशियल ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
एज अ जज जस्टिस कपाडिया वॉज unafraid of politically powerful people. What kind of people? Politically powerful people. Now we can replace some adjective phrases with suitable adjective. तो 3 तो मैंने आपको adjectival phrase के exercise के examples दिए थे. अब ये जो आगे है, we can replace some adjective phrases with suitable adjectives. यानी अगर हमको adjective phrases दिए हैं तो हम उनको replace कर सकते हैं with another suitable adjectives. For example, during the recent cyclone, our colony experienced torrential and gusty winds and rain. अब यहाँ पे मैंने एडजेक्टिवल फ्रेज को अंडरलाइन किया है, torrential and gusty winds and rain. तो ये जो है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है, इसको हम एक वर्ड दे सकते हैं stormy weather. During the recent cyclone, our colony experienced stormy weather. तो ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज को हमने रिप्लेस कर दिया है बाय एडजेक्टिव stormy. ओके. नेक्स्ट, द विंड्स हावेवर वर रफ एंड डिस्ट्रक्टिव टू. अभी यहाँ पर वापस से रफ एंड डिस्ट्रक्टिव हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है. व्हाट काइंड ऑफ विंड्स वर दे वर रफ एंड डिस्ट्रक्टिव. तो विंड्स हावेवर वर डैमेजिंग, यहाँ पे मैंने वर्ड दे दिया है डैमेजिंग. ये एडजेक्टिव हो गया है फॉर एडजेक्टिवल फ्रेज रफ एंड डिस्ट्रक्टिव. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द फ्रूट ट्री गेव अस जूसी प्लम्प गुआवाज दैट हैड बीन स्मैश्ड टू द ग्राउंड. The fruit trees gave us juicy plump guavas that had been smashed to the ground. तो juicy plump guavas, तो juicy plump हमारा adjectival phrase हो गया. 2 words आ रहे हैं juicy plump, तो इनके लिए हमने एक ही word use कर दिया है ripe. The fruit trees gave us ripe guavas that had been smashed to the ground. अभी हमारा adjectival phrase खत्म हो गया है. अब last part जो है हमारा adjectival और relative clauses. जैसे phrases एक अलग टॉपिक है स्टडी करने के लिए, वैसे ही क्लॉजेस भी एक अलग टॉपिक है स्टडी करने के लिए, जो मैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस टॉपिक जब मैं सेशन करूँगी तो उसमें मैं पूरी तरह से डिफाइन करूँगी. बट यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत जो भी समझ सकते हैं वो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा. अब यहाँ पे आप देखिए, पीछे हमने किए थे फ्रेजेस मतलब जो 2 या 3 वर्ड थे जिसमें अपने आप से कोई मीनिंग नहीं बनता है, पूरा सेंटेंस चाहिए उनके मीनिंग को पूरा करने के लिए. लेकिन क्लॉजेस जो है वो कई बार जो है वो एक सेंटेंस बना सकते हैं, हम थोड़ा बहुत उनसे समझ सकते हैं, बट मीनिंग वो भी नहीं बनाते पूरा. विराट कोहली टुक हिज स्टैंड अगेंस्ट द बॉलर हु हैड बीन हाईली सक्सेसफुल अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़. यहाँ पे देखो, अब रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, रिलेटिव क्लॉज के बारे में हम स्टडी करेंगे. विराट कोहली टुक हिज स्टैंड, ये एक सेंटेंस हो गया. अगेंस्ट द बॉलर, विराट कोहली टुक हिज स्टैंड अगेंस्ट द बॉलर हु हैड बीन हाईली सक्सेसफुल अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़. हु हमने वर्ड यूज़ किया है किसके लिए, बॉलर के लिए. तो बॉलर के लिए ये वर्ड बता रहा है हु हैड बीन हाईली सक्सेसफुल अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़. तो ये पूरा सेंटेंस है. यहाँ पे देखो वर्ब है आपके पास में, हु हैड बीन हाईली सक्सेसफुल अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़, यानी पूरा प्रेडिकेट है हमारे पास में. सब्जेक्ट भी है हु और वर्ब भी है और प्रेडिकेट भी है, यानी पूरा सेंटेंस है हमारे पास में. तो ये आपका हो गया है क्लॉज. द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट विच हैज़ बीन डिजाइंड बाय वर्ल्ड रिनाउंड जर्मन आर्किटेक्ट एंड रेस ट्रैक डिज़ाइनर हर्मन टिल्के इज़ 5.14 किलोमीटर्स लॉन्ग. अब ये जो हमारा विच है, विच भी आपका जो वर्ड है रिलेटिव क्लॉज शुरू होता है. विच हैज़ बीन डिज़ाइंड, यहाँ पे भी पूरा हमारे पास एक सेंटेंस आ गया है. तो ये सब जो है ये सर्किट को डिस्क्राइब कर रहा है. अगला सेंटेंस जो है हमारा सर्किट को डिस्क्राइब कर रहा है. द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट विच हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय वर्ल्ड रिनाउंड जर्मन आर्किटेक्ट एंड रेस ट्रैक डिज़ाइनर हर्मन टिल्के. ये पूरा हम डिस्क्राइब कर रहा है सर्किट को. तो ये भी हमारा हो गया है एडजेक्टिव क्लॉज, यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना पूरा सेंटेंस फॉर्म में, तो ये हमारा हो जाता है एक क्लॉज. एन एडजेक्टिवल क्लॉज गिव्स यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग. एडजेक्टिवल क्लॉज आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉजेस. एडजेक्टिवल क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉजेस भी कहते हैं. जब क्लॉजेस चैप्टर आएगा तो उसमें 3 टाइप के क्लॉजेस होते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज. तो ये हम एडजेक्टिव क्लॉज स्टडी कर रहे हैं. तो रिलेटिव क्लॉजेस आर ऑफ 2 काइंड्स, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग. ये बहुत ही सिंपल और ईजी है, एकदम अंडरस्टैंडेबल है. ये जो रिलेटिव क्लॉज हैं ये 2 काइंड के होते हैं. एक होता है डिफाइनिंग और एक होता है नॉन डिफाइनिंग. अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज गिव्स
essential defining information about a person or thing, the meaning of the sentence is incomplete without this information. अभी defining relative clause वो होता है कि जो अगर प्रेजेंट है तो सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है, और जो अगर एब्सेंट रहेगा तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बनेगा, यानी वो ज़रूरी होता है सेंटेंस के लिए. जैसे द बॉय हु आंसर्ड द टीचर्स क्वेश्चन इज़ माई कज़िन. अब अगर मैं इस रिलेटिव क्लॉज को निकाल देती हूँ, द बॉय इज़ माई कज़िन. अभी द बॉय तो इतने सारे बॉयज़ में से कौन सा बॉय है हमको कैसे पता चलेगा, तो इसीलिए उसको डिस्क्राइब किया गया है द बॉय हु आंसर्ड द टीचर्स क्वेश्चन. सो हु आंसर्ड द टीचर्स क्वेश्चन, ये जो हमारा रिलेटिव क्लॉज है ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज आप बोल सकते हो. द गर्ल हु हैज़ ब्यूटिफुल आइज इज एलिजाबेथ जेन्स सिस्टर. अभी द गर्ल इज़ एलिजाबेथ जेन्स सिस्टर, अगर हम खाली एक गर्ल के बारे में बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमको डिस्टिंग्विश करना है बहुत सारे गर्ल्स में से तो कौन, तो उसके लिए हमको एक डिस्क्रिप्शन देना होगा. तो वो डिस्क्रिप्शन ये है, हु हैज़ ब्यूटीफुल आइज़. तो द गर्ल हु हैज़ ब्यूटीफुल आइज़ इज़ एलिजाबेथ जेन्स सिस्टर. तो ये हमारा डिफाइनिंग एडजेक्टिवल रिलेटिव क्लॉज हो गया है. अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है. अभी ये जो फर्स्ट डिफाइनिंग में हमने समझ लिया कि डिफाइनिंग में ये एडजेक्टिव क्लॉज कंपलसरी होते हैं, बिना उसके सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है. तो नॉन डिफाइनिंग उसका उल्टा, वो अगर हम क्लॉज नहीं भी डालेंगे सेंटेंस में तो भी चलेगा, उसके बिना भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है. अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और थिंग, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कंप्लीट इवन विदाउट दिस इन्फॉर्मेशन. इस इन्फॉर्मेशन के बिना भी सेंटेंस का मीनिंग हमारा कंप्लीट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माई मदर हु इज़ अ डॉक्टर इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. अगर मैं ये रिलेटिव क्लॉज निकाल देती हूँ हु इज़ अ डॉक्टर, तो भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा. माई मदर इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. तो यहाँ पर जो मैंने रिलेटिव क्लॉज डाला है, एडजेक्टिव क्लॉज डाला है, एडजेक्टिवल क्लॉज, ये अगर मैं नहीं भी डालूंगी तो भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा. तो इसीलिए इस टाइप के क्लॉज को हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. आई लेंट माई लैपटॉप टू गुरप्रीत हु इज़ अ क्लोज फ्रेंड. अब यहाँ पे भी सेंटेंस वही बात है, आई लेंट माई लैपटॉप टू गुरप्रीत. अभी गुरप्रीत हमको प्रॉपर नेम है तो हमको एग्जैक्टली पता है कि गुरप्रीत को दिया हुआ है, किसको दिया है वो ऐसा तो क्वेश्चन तो है नहीं हमारे पास में, तो एग्जैक्टली हमको पता है इट इज़ गिवन टू गुरप्रीत, देयरफॉर आई लेफ्ट माई लैपटॉप टू गुरप्रीत. ये हमारा हो गया प्रॉपर सेंटेंस विदाउट हु इज़ अ क्लोज फ्रेंड, बिना इसके भी हमारा ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है. लेकिन अगर इसको ऐड करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे ये जो हु इज़ अ क्लोज फ्रेंड ये आपका नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो जाता है. तो रिलेटिव क्लॉजेज अबाउट पीपल बिगिन विद द रिलेटिव प्रोनाउंस. याद रखिए रिलेटिव क्लॉजेज अबाउट पीपल, अगर लोगों के बारे में हमको किसी की बात करना है, अगर हम थिंग के बारे में बात करते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर लोगों के बारे में बात करते हैं तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो है नॉर्मली हु, हुम और हुज है ना. हु मतलब भी कौन, पर्सन, हुम किसको, हुज किसका, ये सब भी पर्सन से रिलेटेड वर्ड्स हैं. देयरफॉर रिलेटिव क्लॉजेज अबाउट पर्सन स्टार्ट विथ हु, हुम और हुज. एग्जाम्पल्स है यहाँ पे. एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ द ओरिजिन एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स. एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु, पर्सन ह्यूमन है जो स्टडी करता है, हु, इसीलिए हु से स्टार्ट किया गया है. हु स्टडीज़ द ओरिजिन एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स. तो हु स्टडीज़ द ओरिजिन्स एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स ये हमारा एडजेक्टिवल क्लॉज है, और ये हमारा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है. डिफाइनिंग क्योंकि उसके बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. स्नो वाइट हैज़ अ स्टेप मदर whom she was scared of. स्नो वाइट हैज़ अ स्टेप मदर whom she was scared of. अभी यहाँ पे whom है ना, स्नो वाइट हैड अ स्टेप मदर, स्टेप मदर के लिए वर्ड यूज़ किया गया whom she was scared of. अभी ये जो whom she was scared of ये आपका नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि ये नहीं भी लिखते थे तो भी चलता था. स्नो वाइट हैड अ स्टेप मदर ये अकेला भी सेंटेंस काफ़ी है. दिस इज़ द टीचर हुज डॉटर इज़ इन माई क्लास. दिस इज़ द टीचर हुज डॉटर इज़ इन
माई क्लास। हुज हमने टीचर के लिए हुज यूज़ किया है। अभी देख लो 3 अलग अलग सेंटेंस में हमने पर्सन के लिए ही बात किया है, पर्सन के बारे में ही बात किया है, बट कहीं पर हु है, कहीं पर हुम है, कहीं पर हुज है। इट ऑल डिपेंड्स योर लैंग्वेज नॉलेज कि कहाँ हम हु यूज़ करेंगे, कहाँ हुम और कहाँ हुज। सो रिलेटिव क्लॉज अबाउट थिंग्स और एनिमल्स बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउंस विच, दैट एंड हुज। ये तो हमने पर्सन के बारे में ऊपर बात किया था, अब हम थिंग्स और एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। अगर रिलेटिव क्लॉज आपको थिंग्स के बारे में बताना है या एनिमल्स के बारे में बताना है तो दे बिगिन विथ विच, दैट एंड हुज। आई हैव एन एटलस विच वॉज प्रिंटेड इन 1965। आई हैव एन एटलस विच वॉज प्रिंटेड इन 1965। एटलस इज अ बुक, इट्स अ थिंग विच हमने यूज़ किया है फॉर दैट बुक। देर आर अ नंबर ऑफ बर्ड्स दैट डोंट फ्लाई। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो नहीं उड़ते हैं, तो दैट हमने यूज़ किया है बर्ड्स के लिए। Primus has published a book whose author is my father's friend. Primus has published a book. अगेन यहाँ पे थिंग है, थिंग के लिए हमने whose यूज़ किया है। whose इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये थिंग किसने बनाई है, कौन से पर्सन ने बनाई है, उस पर्सन के बारे में हम बताने वाले हैं आगे। इसके लिए हमने whose यूज़ किया है। whose author is my father's friend। तो यहाँ पर ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ये सेशन ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए। थैंक यू एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट सेशन।